جب میرے مسیحا نے یہ کلمہ اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا تو جو دو ڈاکو، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا، دونوں نے دیکھا، بائیں طرف والا طنز کر کے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو آپ بھی بچ جاؤ اور ہمیں بھی بچا۔ اب جو دائیں طرف والا تھا، حقیقت میں وہ ڈاکو نہیں تھا، وہ گملییل کا بیٹا تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ جب برابا نے یہودیوں کو ساتھ ملا کے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کی تو یہ بغاوت برابا کی سرکردگی میں کی گئی۔ گو رومیوں نے اسے سر کر لیا، کچل دیا بغاوت کرنے والوں کو۔ ان میں کچھ بگوڑے تھے، بھاگ نکلے، برابا گرفتار ہو گیا۔ تو برابا کے لیے رومی حکومت نے گملییل سے فتویٰ مانگا، تو گملییل نے یہ فتویٰ دیا کہ برابا واجب القتل ہے۔ جب گملییل نے یہ فتویٰ دیا تو جو بگوڑے ساتھی تھے برابا کے، انہوں نے برابا کو خبر دی کہ برابا نے حکم دیا کہ گملییل کے بیٹے کو اغوا کیا جائے۔ گملییل کا بیٹا جوان تھا، اس کو اغوا کیا جائے اور کسی ڈاکے میں اس طرح اسے پھنساؤ کہ تم بھاگ جاؤ اور وہ گرفتار ہو جائے۔ جب اس کے خلاف فتویٰ ہوگا، جب اس کے خلاف سزا ہوگی تو اسے فتویٰ دینے کا مزہ آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جو برابا کے بگوڑے ساتھی تھے، لکے چھپے تھے، انہی میں یہودا اسکریوتی بھی تھا، جو مسیح کے شاگردوں میں شامل ہوا اور رسالت کے درجے تک پہنچ گیا۔ گملییل کے بیٹے کو انہوں نے پکڑا، ڈاکے میں اسے پھنسایا اور وہ رومی حکومت کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو رومی حکومت نے جیسا گملییل نے برابا کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ وہ واجب القتل ہے، اسے صلیب پر چڑھایا جائے، تو یہی سزا انہوں نے گملییل کے بیٹے کے لیے بھی تجویز کی۔ چونکہ پینتوس پلاطوس کی عدالت میں یہودیوں، فقیوں، فریسیوں، دین کے ٹھیکیداروں نے برابا کو مانگ لیا، کیونکہ عید فصح پر رومی حکومت ایک ایسے ڈاکو کو جو موت کی سزا جسے سنائی گئی ہو، اسے عید فصح پر یہودیوں کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ تو جب پینتوس پلاطوس نے یسوع کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں عید فصح پر جسے سزائے موت دی گئی ہو اسے آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں یسوع کو تمہاری خاطر عید فصح پر آزاد کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، برابا کو آزاد کر دے اور یسوع کو صلیب دے، چونکہ وہ ایک ہی قیدی کو جسے سزائے موت دی جاتی تھی چھوڑا جاتا تھا۔ تو چونکہ یہودیوں نے برابا کو مانگ لیا جس کے لیے صلیب تیار کی گئی تھی، بہت بڑی صلیب جس پر برابا کو مصلوب کیا جانا تھا، اسی صلیب پر یسوع کو چڑھایا گیا۔
क्योंकि गमलीएल के बेटे को भी सजाए मौत सुनाई गई थी, और ये जो दाईं तरफ सलीब पर है ये गमलीएल का बेटा था। तो जब मेरे मसीहा ने फरमाया, ऐ बाप इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। ये पहला कलमा लूका की इंजील 23वें बाब की 34वीं आयत में ये मरकूम है। लूका 23वां बाब 34वीं आयत। तो जब ये कलमा मेरे मसीहा ने अपने जुबान मुबारक से इरशाद फरमाया, तो गमलीएल का बेटा चूंकि नविश्तों से वाकिफ था, वो बाइबल से वाकिफ है, पुराने अहदनामे से वाकिफ है, और उसका बाप एक बहुत बड़ा आलम दीन था जो मुफ्ती भी था। उसने मसीह खुदावंद के बारे में ये कलमा जो मेरे मसीहा ने इरशाद फरमाया सुना, पढ़ा भी होगा। ये यशायाह 53 बाब की ये 12वीं आयत है, जो मेरे मसीहा ने पहला कलमा इरशाद फरमाया। ये पेशनगोई यशायाह 53 बाब की 12वीं आयत में दी गई है कि वो सताने वालों की शफायत करेगा, मारने वालों की शफायत करेगा। तो जब इस गमलीएल के बेटे ने ये सुना, तो जो बाईं तरफ वाला था जिसने तंज किया, पहले उसे डांटा, चुप रहे, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। पहले उसे डांटा और फिर अपने गुनाह का इकरार किया। ये 3 जुमले जो दाईं तरफ वाला है उसने भी बोले। पहले तो उसे डांटा क्योंकि उसने गलत बात की, उसने तर्ज किया, मेरे मसीहा की तौहीन की। पहले उसे डांटा। ये एक पैगाम है हमारे लिए। जो गलत बात करता है, जो मेरे मसीहा की तौहीन करता है, उसे डांटना चाहिए। जैसे ये सलीब पर है तो भी उसने जो गलत बात की, तंज किया, पहले उसे डांटा और फिर अपने गुनाह का इकरार किया। हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, अपने गुनाह का इकरार किया और यीशु की पाकीज़गी का ऐलान किया कि ये बेगुनाह है। पहले अपने गुनाह का इकरार किया और फिर यीशु की पाकीज़गी का ऐलान किया कि ये बेगुनाह है। और चौथा जो उसने फिक्रा बोला वो एक इल्तिजा थी कि ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। वो निविष्ठा उसे याद आ गया जो यशायाह 53 बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि वो सताने वालों के लिए शफायत करेगा, मारने वालों के लिए शफायत करेगा। तो ये निविष्ठा जब उसे याद आया तो उसने मेरे मसीहा से दरखास्त की, गुजारिश की। और ये दूसरा कलमा है जो लूका 23वें बाब की 43वीं आयत में है कि जब तू अपनी बादशाही में आया तो मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा आज ही, ये दूसरा कलमा जो मेरे मसीहा ने गमलीएल के बेटे उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे मसीहा ने ये जो दूसरा कलमा उस डाकू के लिए अपनी जुबान मुबारका से अदा किया, आज ये हमारे लिए एक पैगाम है। और वो पैगाम क्या है कि जो गलत बात करता है, जो गलत तालीम देता है और मेरे मसीहा की तौहीन करता है, पहले उसे डांटना जरूरी है, जो इस डाकू ने किया। अपने साथी को जिसके साथ वो डाके में गिरफ्तार हुआ था, जिसके साथ
उसने जुल्म किया है। और ये डाकुओं का गिरोह था जो कैद में था। बराबा को भी सजाए मौत और इनको भी सजाए मौत दी गई थी। और जिस तरह मैंने बताया, बराबा को तो उन्होंने मांग लिया और अपने कानून के मुताबिक रूमी हुकूमत ने, जैसा यहूदियों के लिए उन्होंने एक कानून ठहराया कि हर ईद फसा पर एक डाकू को, एक बागी को जिसे सजाए मौत दी गई हो, आजाद कर दिया जाएगा। बराबा की सलीब जो उसके लिए तैयार की गई थी, और आज के दिन इन दो डाकुओं के साथ बराबा को सलीब दिया जाना था, उसी सलीब पर मेरे मसीहा को लटका दिया गया। चूंकि इन दो डाकुओं के लिए कोई शर्त नहीं थी, कोई आइन नहीं था, इसलिए एक दाएं और एक बाएं लटका दिया गया। बाईं तरफ वाले डाकू ने भी अपने मुंह से अल्फाज बोले, कलमा बोला, नजा के वक्त मौत सामने है। वो कट्टर यहूदी था। जैसा यहूदी फकी फरीसी, ये दीन के ठेकेदार मेरे मसीहा की हीने हयात में तंज करते थे, इसने उनसे तंज सुना है। और आज सलीब पर भी वही कलमा इसने बोला है जो फकियों फरीसियों यहूदियों अपने मां बाप से तंज सुना था, वही तंज इसे ले डूबा। एक डाकू जहन्नम में और दूसरा डाकू फिरदौस में। ये दो डाकू दो ग्रुपों की निशानदेही कर रहे हैं। ये दो डाकू दो जमातों की निशानदेही कर रहे हैं, अक्कासी कर रहे हैं, दो कलीसियाओं की अक्कासी कर रहे हैं। और इन डाकुओं के कलमात के सबब जो उन्होंने अपने मुंह से बोले, पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा है जो मेरे मसीहा पर तंज करता है, एक हिस्सा है जो मेरे मसीहा की तौहीन करता है, और वो बाईं तरफ वाले डाकू की तरह जहन्नम के फरजंद है, जहन्नम में जाएंगे। दाएं तरफ वाला डाकू जो फिरदौस में जाने वालों की अक्कासी करता है, पहले तो उसने उसको डांटा है क्योंकि उसने गलत बात की, उसने मेरे मसीहा की तौहीन की। पहले उसे डांटा, फिर अपने किए का, अपने गुनाहों का इकरार किया कि हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। अपने गुनाहों का इकरार किया। यह हमारे लिए एक पैगाम है। जब तक अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, तब तक यीशु के साथ व्यवस्था नहीं हो सकेंगे। यीशु की पाकीज़गी का ऐलान नहीं करेंगे, गलत तालीम देने वालों को नहीं डांटेंगे, झूठी तालीम देने वालों को तंबीह नहीं करेंगे, तब तक जो मेरे मसीहा ने इस डाकू से इरशाद फरमाया, मसीह खुदावंद नहीं कहेगा हमारे लिए। यूं तो ये दो डाकू थे, मगर दो ग्रुपों की अक्कासी कर रहे हैं। एक जहन्नम में जाने वाला ग्रुप है जिसकी अक्कासी ये बाईं तरफ वाला जो तंज करता है वो कर रहा है, और एक फिरदौस में जाने वाले हैं जिनकी अक्कासी दाईं तरफ वाला कर रहा है। अब ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने किस डाकू के कलमे पर हमने गौर करना है। जब उसने दरखास्त की है चौथे नंबर पर, पहले उसे डांटा, फिर अपने गुनाहों का इकरार किया, और फिर मेरे मसीहा से कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना।
अब यीशु ने कोई देर नहीं लगाई। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं जाऊंगा और अपने बाप से मशवरा करूंगा, मैं जाऊंगा और सोचूंगा। उसी वक्त यीशु ने उसके लिए ऐलान कर दिया, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये आज ऐलान हमारे लिए भी है, लेकिन हमें उसी जुर्रत का मुजाहिरा करना होगा जिस जुर्रत का उस दाईं तरफ वाले डाकू ने किया था, कि झूठी तालीम देने वालों को डांटे, अपने गुनाहों का इकरार करें और फिर यीशु के आगे दरखास्त करें। तो फिर यीशु देर नहीं लगाता, उसी वक्त ऐलान कर देता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आप सबको बरकत दे।